ग्रेविटेशन फोर्स के बाद अब हम देखते हैं फ्री फॉल। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली मीन्स ओनली अंडर द gravitation force, then the fall of object is called free fall. Under the gravitation force मतलब कि हम कौन कौन से फोर्स निगलेक्ट कर रहे हैं? बाकी सारे फोर्स लाइक एयर रेजिस्टेंस, बियॉन्ड फोर्स, विस्कस फोर्स और अदर फोर्स। केवल जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर फॉल करता है विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी applying force, only under the gravitation force, then the fall of object is called free fall. Gravity. Under the free fall, gravitation force per unit mass or gravitation acceleration for freely object is called gravity. It is represented by small g, and the value of small g is 9.8 meter per second square. Now, in the previous video, we have also learned about one more g, that was capital G, and this is small g. Small g is known as gravitational acceleration and capital G is known as universal gravitation constant. So now what are the differences between G and G? That is gravitational acceleration and universal gravitation constant. So here we are. Capital G is universally constant, as its name implies that it is universal gravitation constant. So the value of capital G is same on any places, whether any place on earth, any place on moon, Mars, sun, universe में कहीं भी जाएंगे, capital G is a universally constant. But the value of a small g, gravitational acceleration, varies place to place. हर एक प्लेस पर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है. कैपिटल G is a scalar quantity. It does not imply any direction, while small g is an acceleration, and we know that acceleration is a vector quantity. So small g is a vector quantity. The value of capital G is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square, while the value of G is 9.8 meter per second square. As Z and G are having differences, so they are also having a relation between G and G. Now we know that gravitation force says that F equal to G m1 m2 upon r square. Here we have suppose that m is the mass of earth and small m is the mass of one object. So the gravitation force between earth and object will be G m upon r square, where r is the distance of the mass and earth. Now another force F equal to mg due to gravitation force, that is free gravity, where g is the gravitational acceleration. We know that F equal to ma, and a is also acceleration, g is also acceleration. So F equal to gm upon r square and F equal to mg. So LHS is equal. So by equation 1 and 2 we can say RHS also equal. Now m, cut it the m, so will we have g equal to gm upon r square. Capital G is a constant, capital M is a constant, but r is different. So g equal to gm upon r square, or we can say g is inversely proportional to 1 upon r square. Now the important topic comes here, the variation of small g. As we have learned in the differences that the value of small g varies place to place. So now how it varies and what is the effect, what are the factors which causes the variation of g. So the value of g is different on different places. For example, हम देखें हमारे जो अर्थ का शेप है वो परफेक्ट स्फेयर ना होकर जो पोल साइड होते हैं वहाँ थोड़ा सा ये फ्लैट होता है. तो अगर हम बात करें सेंटर से इक्वेटर के बीच का डिस्टेंस और सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस, तो सेंटर से इक्वेटर तक का डिस्टेंस को हमने डिनोट किया है RE, एंड सेंटर से फ्लैट तक का, पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने माना RP. तो क्या RE और RP दोनों ही इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि
आर पी और आर ई तब इक्वल होते हैं जब ये पूरा हम यहाँ तक लेते स्क्वायर. इट मीन्स हम कह सकते हैं आर ई इज ग्रेटर देन आर पी. नाउ z इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². जहां r कम होगा वहां g ज्यादा होगा, जहां r ज्यादा होगा वहां g कम होगा. दैट मीन्स इफ re is greater than rp then ge less than gp. दैट मीन्स e for equator, p for pole. तो हम कह सकते हैं कि पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेटर से ज्यादा होती है. Or we can say small z is maximum at pole and small z is minimum at equator. So as we move from pole to equator means जब हम पोल से इक्वेटर की ओर आते हैं then the value of z is decreases. और इसको हम अगर इन्वर्स करके बोलें is as we move from equator to pole the value of z is increases. It means अगर हम वापस इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो g की वैल्यू बढ़ेगी. नाउ थोड़े से और अलग टाइप की वेरिएशन भी हैं. z decreases when we move up to the earth surface. अब अभी हमने बात की थी अर्थ सरफेस पर ही अलग अलग z, लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर बाहर जाएं, ऊपर की ओर जाएं, तब भी g की वैल्यू चेंज होती है एंड इट इज डिक्रीजेस. स्मॉल g डिक्रीजेस व्हेन वी मूव इनसाइड द अर्थ. अगर हम अर्थ के अंदर जाएं, अर्थ के अंदर टनल खोदकर जाने की कोशिश करें, तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तब भी स्मॉल g की वैल्यू डिक्रीज होगी. मतलब ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज, नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज. पोल पर अलग, इक्वेटर पर अलग. अब हम देखते हैं कि जब हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी में किस तरीके से वेरिएशन आता है. सो द डेरिवेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ स्मॉल g ऑन हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस. हमने माना हमारे पास एक अर्थ है जिसका मास कैपिटल M, जिसका रेडियस कैपिटल R है. अर्थ सरफेस से हमने कुछ हाइट ली जो कि h हाइट है और यहाँ हमें ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ हमने माना ग्रेविटी कितनी है g डैश और अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी कितनी है स्मॉल g. तब हम जानते हैं ऑन द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ g इक्वल टू gm/r². अभी हमने देखा रिलेशन बिटवीन g एंड g. सो g इक्वल टू gm/r². सिमिलरली अगर यहाँ हम बात करें h हाइट पर तो g डैश इक्वल टू gm/r प्लस h का होल स्क्वायर. यहाँ डिस्टेंस r थी, यहाँ डिस्टेंस h और ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी r प्लस h का होल स्क्वायर. सो g डैश इक्वल टू gm/r प्लस h का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 1. इक्वेशन 2. नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. सो विल हैव gm/r प्लस h होल स्क्वायर अपॉन gm/r². gm से gm कैंसिल, इट विल बिकम 1/r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन 1/r². तो ये ऊपर चला जाएगा. देन g डैश अपॉन g इक्वल टू r² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर. नाउ वी कैन ऑल्सो टेक आउट द कॉमन ऑफ r² फ्रॉम द ब्रैकेट. सो विल हैव r² अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा r² इंटू 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर. क्योंकि यहाँ r नहीं है तो हमने यहाँ r का मल्टीप्लाई r का डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई r कॉमन ले लिया, डिवाइड बचा, तो क्या बचेगा r² इंटू 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर. r² से r² कैंसिल, क्या बचेगा 1/1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर. लाइक दैट. नाउ वी कैन ऑल्सो राइट लाइक g डैश अपॉन g इक्वल टू 1 प्लस h अपॉन r रेज़ पावर -2. जब कोई 1/x² होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x पे -2. तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 प्लस h अपॉन r पे -2 की पावर. नाउ बाइनोमियल थ्योरम. अगर 1 प्लस x अपॉन a पे n की पावर है और x a से बहुत छोटा है, देन वी कैन राइट बाय द बाइनोमियल थ्योरम दैट 1 प्लस x अपॉन a होल रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस
n इंटू एक्स अपॉन ए, मतलब जो पावर होती है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ हम जानते हैं h r से बहुत छोटा है, क्योंकि r बहुत बड़ी वैल्यू और h हम बहुत छोटा ले रहे हैं, कुछ हाइट पर ले रहे हैं। सो वी कैन अप्लाई बायनोमियल थ्योरम। तो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, ये -2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो g डैश अपॉन g इक्वल टू 1 प्लस -2h अपॉन r। सो g डैश अपॉन g इक्वल टू 1 -2h अपॉन r और g डैश इक्वल टू g इंटू 1 -2h अपॉन r। इक्वेशन 3। अब हम देख सकते हैं g डैश की वैल्यू अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, g माइनस समथिंग, मीन्स g से कुछ हम माइनस कर रहे हैं। तो g डैश की वैल्यू क्या शो कर रही है कि ये वैल्यू कुछ g से कम है, मीन्स जब हम ऊपर जाएंगे तो g डैश की वैल्यू कम होती जाती है। अब कम होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो इक्वेशन 3 shows that height of the value of g decreases. Now special, if g dash equal to 0, then 1 minus 1 equal to 0. It means 2h upon r should be 1. तो 2h upon r equal to 1, तो h equal to r by 2। मतलब कि हम अर्थ सरफेस से अगर r by 2 हाइट पर चले जाएं तो अर्थ की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है।